हाँ जी बेटे, जो ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 + 1 ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਕਰਤਾ ਤਾਂ 4 + 1 ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 5। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4th ਟਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12। c r ਨੂੰ ਕੀਤਾ 3, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਹੀ ਹੈ 12 - 3 और y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ -2y raised to power 3। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 12 - 3 फैक्टोरियल x raised to power 9 - 2 raised to power 3 y raised to power 3। ओपन करते हैं 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल ते आके रुक जाने 3 नू ओपन कर लो 3 × 2 × 1 × 9 फैक्टोरियल x raised to power 9 y raised to power 3 × -8 -2 raised to power 3 कैंसल 3 2s are 6 6 2s are 12। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ -2 × 8 16 × 110 x raised to power 9 y raised to power 3 -0 16 1s are 16 1 16 ਤੇ 1 17। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਜਰਨਲ ਟਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ हमेशा याद रखना है। जरनल टर्म के फार्मूले नाल आपां बहुत सारे सम्स सॉल्व करांगे। नैक्सट क्वेश्चन लैने आपां फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 3x² by 2 minus 1 by 3x raised to power 50। इंडिपेंडेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ x ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨਿਸ਼। ਵੈਨਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ x ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਟਰਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਰਨਲ ਟਰਮ in x plus y raised to power n is की है बेटा tr plus 1 ncr x raised to power n minus r y raised to power r। जर्नल टर्म लिख दें जो अपनी एक्सपेंशन दी हुई है। n की वैल्यू 15 cr x 3x² by 2 raised to power 15 minus r -1 by 3x raised to power r। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 3/2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 15 ਮਾਈਨਸ r, x² ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 15 ਮਾਈਨਸ r, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ r 1/3 ਦੀ ਪਾਵਰ r 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ r। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ। 15 cr 3/2 raised to power 15 minus r -1 raised to power r 1/3 raised to power r। ਇੱਥੇ x² ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 30 - 2r। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/x raised to power r। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। x ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15 cr 3/2 raised to power 15 minus r -1 raised to power r ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1/3 raised to power r। ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਪੋਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪੋਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ x ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू की होनी चाहिए है 0। तो कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग
वी गेट अपने को एक्स की पावर कितनी है 30 माइनस 3r आ चाहिए कितनी है 0 तो 30 माइनस 3r ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੋ 30 इज इक्वल टू 3r r इज इक्वल टू 10 ਹੁਣ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ 10 ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ पुट इन 1 इधरों बेटा अपने को की चली जाता टी आर प्लस 1 तो आर की वैल्यू हूँ असी की पुट करनी है 10 10 प्लस 1 माइनस 1 रेज टू पावर आर है आर की वैल्यू 10 15 सी 10 3 बाय 2 15 माइनस 10 1 बाय 3 रेज टू पावर 10 एक्स रेज टू पावर 30 माइनस 10 जो फिल करांगे 20 तो यह कितना बन गया 30 3 इंटू 10 30 माइनस 3 आर सी 30 माइनस 30 कितना हो गया 0 माइनस की पावर ईवन है तो यह बन गया प्लस इनू ओपन कर लो 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 15 माइनस 10 फैक्टोरियल 3 बाय 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1 बाय 3 रेज टू पावर 10 ओपन कर लेने बेटे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल में ओपन कर लो 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1 बाय 3 रेज टू पावर 10 3 रेज टू पावर 5 3 5 वारी है इत्थे 3 10 वारी है तो इनू कट के 5 वारी कट्टिया जाऊगा 5 वारी रह जाऊगा इनू भी कैंसल कर दो 10 नाल 10 5 3s आर 15 4 3s आर 12 2 7s आर 40 इनू सॉल्व कर लो सॉल्व करके जिन्ना भी आऊगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाऊगा 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1 बाय 2 रेज टू पावर 5 32 1 बाय 3 रेज टू पावर 5 243 इनू सॉल्व कर लो सॉल्व करके अपने को आंसर आ जाऊगा इस तरह का ही आप एक क्वेश्चन होर लैन लगे हैं जिहदे विच कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ find the coefficients of x raised to power 5 in x plus 3 raised to power 8 बेटा फार्मूला फिर वही जर्नल एक्सप्रैशन का टी आर प्लस 1 कि बराबर एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर तो जो मर्जी सम है आप कि सॉल्व कर रहे हैं जर्नल टर्म ना हुण अपने को एन की वैल्यू है 8 एन की वैल्यू असी 8 भर दिने 8 सी आर एक्स की वैल्यू एक्स ही है 8 माइनस आर वाई की पावर कितनी आ जाऊगी आर वाई की जगह तो सॉरी कितना लिखा होया इत्थे 3 रेज टू पावर आर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5 ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 5 ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ x ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ x ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ x ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ टू क्वेश्चन कंपेयर सिंपल लैंग्वेज विच लिखन लगी हाँ पावर ऑफ एक्स वी गेट 8 माइनस आर और चाहिए किन्नी सी 5 लास्ट क्वेश्चन च आपां नूं 0 चाहिए सी आपां 0 के बराबर रखता हुण आपां नूं 5 चाहिए है तो इनू सॉल्व कर लो
8 माइनस 5 इज इक्वल टू आर दी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले 3। पुट कर दो जी, इनू असी फर्स्ट नंबर कहने आ। पुट इन 1 t3 plus 1 is equal to 8c3 x raised to power 8 minus 3 raised to power 3। 8 factorial 3 factorial 8 minus 3 factorial x raised to power 5 3 raised to power 3 27। 8 into 7 into 6 into 5 factorial अपॉन की आ गया 5 factorial 3 into 2 into 1 into 27 into x raised to power 5। कट कर दो 3 2s are 6 कितना आ गया बेटे ये 56 into 27 x raised to power 5। पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन च की पूछा उन्हें कोफिशेंट। कोफिशेंट का मतलब की है गुणांक। किहदा गुणांक x रेज टू पावर 5 का कोफिशेंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 56 इंटू 27। इनू मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जिन्ना भी आ जाएगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा।